Hello everyone. So I'll be just giving you some pointers that would help you to sort things out for your upcoming examination. So first of all, check out the syllabus. Topic wise, we are working. We are working on each topic. You know that there are 10 units. You have to choose in which units you are good, in which you are not good. Also, there are certain things. Sometimes you have uh, you have just think about the fact that okay, I'm not good in some subject like paleo. As for the reference, like I'm not good in paleo because it is difficult for me to cram the terms and all. So sometimes the questions asked in the examination are that you may have read about it somewhere else, so you are able to answer them. And sometimes the subject which is your strength, suppose that you said ki structural geology is my strength, but in exam some numerical type questions are asked or something that is you have not have read. So just don't get disheartened. So I would say कि you never know which subject is your strength or wo, but there are some basic edges. Supposedly someone is good at geomorphology and you have read it very well from everywhere else, so that is a good. Your 12 questions are asked, you almost 11 to 12 questions you might be able to answer. So don't fixate on one thing ki, okay, this is my weak unit, weak part, I won't be able to do it. That is not the case. Things get changed uh, with with the questions and the type of questions that are asked. So don't rely on your strength and weakness. That can get improved, but you should know what is edge and which subject you have edge. PYQs we are doing subject wise. I might not able be give you the whole PYQ series because in some subjects I feel that I'm not competent enough to guide you with PYQs, and if I would do, then it would be not at then it wouldn't be good for you and as well as for me. I won't be giving you the wrong knowledge and wrong information. I don't think that I'm I'll do the fine job with some subjects. Also, read questions subject wise, give 1 to 2 days. I would say solve paper 4 to 5 times. एक बार देख लिया, 2 बार देख लिया, 3 बार देख लिया, 4 बार देख लिया, 5 बार देख लिया. नोट्स बनाए हुए हैं PYQ है, PYQ के अंदर कुछ ना कुछ हर बार नया मिलता रहेगा, मिलता रहेगा, मिलता रहेगा, और उसमें वो आप ऐड करते रहिए. देखिए वो आपको कैसे हेल्प करता है. आप क्वेश्चन पढ़ोगे, आपको फील होगा अरे ये क्वेश्चन में ये भी ऐड हो सकता है. स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चन होते हैं, आपके 4 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हैं, आपको उन 4 स्टेटमेंट में से एलिमिनेट करना आना चाहिए कि कैसे एलिमिनेट होगी, कैसे नहीं होगी. आपको पैनिक नहीं करना है अगर बिग स्टेटमेंट है. बिग स्टेटमेंट हमेशा यूजुअली आपके यूपीएससी एग्जाम में करेक्ट ही होती है. नॉट लगा देते हैं तो इनकरेक्ट हो जाती है. तो इस तरह से आपको PYQ सॉर्ट करने हैं अपने. सॉल्व करो एज मैनी क्वेश्चन एज यू कैन. जैम की बुक ले आओ, गेट की बुक ले आओ, PYQs ले आओ, ठीक है, नेट के ले आओ. उसमें जो सब्जेक्ट्स आपके अलाइन हो रहे हैं, जो आपके सिलेबस अलाइन हो रहे हैं, वो क्वेश्चन आप बैठ के सॉल्व करो. ऑल्सो the one thing that which is important, कि supposedly there are 120 questions and we know that previously year के 2024 की कट ऑफ 188 गई है. दैट इज़ हाई. एंड इस बार तो जियोलॉजिस्ट की वैकेंसी और कम है, तो हो सकता है इट रीच 200 और प्लस. सो इवन दो इफ़ यू वांट टू गेट मेरिट इन, देन योर स्कोर शुड बी 2020 to 230, या इवन उसके ऊपर भी है तो बहुत अच्छी बात है. बट इतना तो आपका स्कोर प्री में होना चाहिए अगर आपको मेरिट इन होना है, क्योंकि सिर्फ प्री मेंस और इंटरव्यू तक जाना ही सक्सेसफुल होना नहीं है. यू हैव टू गेट इन, देन ओनली योर सक्सेस इज काउंट. अदरवाइज you know that you have worked hard, but people won't get that you have worked hard or not. So but I was saying okay, 120 questions are asked and 180 was the previous year cutoff. So this year it will be 200. So you need to know what is your accuracy. आपकी एक्यूरेसी क्या है, कि अगर आप 120 में से अगर आप 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट करो, सपोज करो आपकी 75% एक्यूरेसी है, तो आपका कितना स्कोर आएगा और आपके कितने नेगेटिव होंगे. या अगर आपको ऐसे मार्क्स लेने हैं तो आपको कितने और क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने होंगे कि आपकी अगर इतनी एक्यूरेसी भी है तब आपके कितने मार्क्स होंगे. तो एक्यूरेसी बढ़ाना और अपनी एक्यूरेसी जांचना ज़्यादा ज़रूरी है. वो तब होगा जब आप PYQ सॉल्व करोगे बैठ के आराम से, कि ओके मेरे को ये आ रहा है, मेरे को ये नहीं आ रहा है, इस तरीके से. ओके, एंड एक्यूरेसी आपका पॉइंट मैंने आपको दे दिया. इसके बाद आप जितने क्वेश्चन आपने करने हैं वो आपने डिसाइड कर लिया. उसके हिसाब से आपको टारगेट बनाना होगा. आपको पता है कि आप 100 ही कर पा रहे हो या आप 90 to 100 के बीच में कर पा रहे हो, तो आपको एक्यूरेसी, आपको अपने अटैम्प्ट्स इंक्रीज़ करने के लिए आपको टॉपिक्स जो हैं वो ज़्यादा पढ़ने होंगे, है ना. आपको अपना नॉलेज एरिया जो है वो वास्ट करना होगा, ताकि आपको पता लगे कि ओके मुझे यहाँ पे काम करने की ज़रूरत है. रिवीजन ज़्यादा करनी होगी. बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो क्रैमिंग बेस्ड होते हैं, तो वो क्वेश्चन अगर आपके रह रहे हैं तो आपको उनको अटेंड करने के लिए आपको रिवीजन ज़्यादा करनी होगी. रिपीटेटिव थीम्स आप आइडेंटिफाई करो कि ओके ये क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा आस्क आउट किए हुए हैं, तो इनके ऊपर से क्वेश्चन फिर से आएगा, तो वो चीज़ें, ठीक है. सो
बट आई वुड से अगर मैं आपको कंक्लूड करूँ तो आपको अपनी एक्यूरेसी पहचाननी है कि आपकी एक्यूरेसी कितनी है, कि आपको कितने अटैम्प्ट्स करने होंगे क्वेश्चन के, कि आपको डिसेंट स्कोर जो है वो जियोलॉजी में 210 220 तक चला जाए, और अगर ओवरऑल भी चला जाए तो 220 से ऊपर ही जाए। तो आपको अपने अटैम्प्ट्स और एक्यूरेसी का पता होना चाहिए। आपको अपना वास्ट करना है नॉलेज एरिया बाय सॉल्विंग द पेपर्स, बाय सॉल्विंग द PYQs ऑफ अदर एग्ज़ाम्स एज वेल। तो आपका वास्ट नॉलेज है आपका जो बढ़ेगा तो आपके नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स भी बढ़ेंगे। रिवीजन ज़्यादा करिए, जो रटने वाली चीज़ें हैं उनकी रिवीजन ज़्यादा करेंगे तो नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स उससे भी बढ़ेंगे। रेपिटेटिव थीम को पहचानिए, अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को पहचानिए। सपोज़ करिए कि अगर आपको स्ट्रक्चर में दिक्कत है, स्ट्रक्चर के न्यूमेरिकल पोर्शन में आपको दिक्कत होती है, आपको पता है कि 12 में से भाई मेरे 7-8 ही सही होंगे, बाकी तो मैं शायद ही अटैम्प्ट कर पाऊँ, तो कहाँ से मैं नंबर खींचूँ कि मेरे जो है दूसरे पेपर में वो सेट हो जाएँ, ताकि मैं 115 या 110 क्वेश्चन तो अटैम्प्ट करके ही आऊँ, इस तरीके से। सो एक्यूरेसी, नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स, improve your knowledge, vast out your knowledge, revision, repetitive themes identification, and solve paper, solve PYQ at least 6 to 7 times, make notes of that, make apprehensive notes of that, focus on the GS as well। GS में भी आपको साइंस पे फोकस ज़्यादा करिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इकोलॉजी एज वेल एज जियोग्राफी। इसके ऊपर से कम 80 to 90 क्वेश्चंस हर बार इन सब्जेक्ट से आए हैं। हिस्ट्री सिविक्स, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, मिसलेनियस, इससे सिर्फ आपके 30 से 40 क्वेश्चन आए। सो आपको यहीं से प्रायोरिटाइज रहेगा कि जीएस में किस पे ज़्यादा फोकस करने की जरूरत है, दैट इज़ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इकोलॉजी एंड ज्योग्राफी। तो इस तरीके से आपको अपना एरिया जो है उसको कम करना है और आपको स्केड्यूल बना के आराम से इन सब चीज़ों पे फोकस करना है। सो या वी हैव ऑलरेडी हैड द क्लू कि 188 कट ऑफ गई है, तो इस बार तो 200 ऊपर भी जाना तो कोई बड़ी बात है नहीं, और मेरिटन होने के लिए तो 220 230 नंबर तो आराम से आपको लेने ही पड़ेंगे। तो अपने नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स को बढ़ाने के लिए आपको नॉलेज ज़्यादा गेन करना पड़ेगा, एज सिंपल एज दैट। एंड आपको ट्रिप्स एंड ट्रिक जो है वो आपको पता होनी चाहिए कि आपको अगर क्वेश्चन फंस रहा है, क्योंकि ऐसा होता है कि पेपर में आप जा रहे हैं तो आपको सब पढ़ा हुआ में से कुछ नहीं आना, बहुत कम चीज़ें आएंगी, जो पढ़ा होगा उसमें से कम ही आएंगी। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपने नहीं पढ़े होते, लेकिन वहाँ पे आपको सॉल्व कर सकते हो जब आप वहाँ पे अपने ऑप्शंस को एलिमिनेट करने की ट्रिक्स लगा सको, जब आप थोड़ा सा कूल माइंड थिंकिंग से जान सको कि हाँ आपको ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, कैसे नहीं करना है। क्योंकि जब हम हमें एंग्जियस होते हैं और हम पजल हो जाते हैं तो हम सॉल्व नहीं कर पाते, तो आपको उस पर भी काम करना है। तो आप 2 घंटे का टाइमर लगाइए और 2 घंटे में आप 120 क्वेश्चन लगाइए। कोई भी मॉक टेस्ट ले लीजिए, पता करिए कि आप कैसे क्वेश्चंस को कर पा रहे हैं। कोई भी मॉक टेस्ट जो है वो यूपीएससी, हमारे वाले सब्जेक्ट के लिए तो यूपीएससी टाइप नहीं निकालता, पर जो भी मिल रहा है आपको आप उसमें अच्छे से कर सकते हैं। सो या दैट्स ऑल, थैंक यू।